video, you are going to study the concepts of admission. As we know, that when new partner is admitted into partnership, there is a requirement of certain adjustment in accounts. Because whenever new partner enters, he will acquire a share in the profits of firm, and because of which the old partners has to lose. Admission of a partner is one of the modes of reconstitution of partnership firm, where the partner is added in the firm. So there is requirement when partnership firm is reconstituted, and because of entry of the new partner, partnership deed is prepared. A new partnership deed is prepared when the new partner is admitted and the old partnership comes to an end. The old partnership deed comes to an end. According to the section 31, subsection 1 of the Indian Partnership Act, a new partner can be admitted only with the consent of all existing partners. Now, there is a question arises why we need a new partner when there is old partnership it is running, then why there is a requirement for new partner? So reasons might be when more capital is needed and we want to expand our business. जब बिजनेस को ये लगता है कि नाउ द बिजनेस हैज टू एक्सपैंड एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेंशन ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक नए पार्टनर को उस फर्म में ऐड किया जाता है. When it is required कि now the firm needs a competent and experienced person so that वो person हमारे business को अच्छी तरह से रन कर सके, efficiently उसको रन कर सके. If we want to increase the goodwill or we can say the reputation of company, so हम किसी ऐसे person को partnership में add करते हैं, किसी reputed या renowned person को, जिससे कि हमारी goodwill बढ़ जाए. और जब हम चाहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज कर सकें कि पार्टनरशिप में वो भी अच्छा पार्टिसिपेट करें, सो दैट्स व्हाई फॉर दीज रीजन वी नीड अ पार्टनर, अ न्यू पार्टनर. As a partner is admitted, so there is requirement for certain adjustments. That might be calculation of new profit sharing ratio, accounting treatment of goodwill, accounting treatment for revaluation of assets and liabilities, accounting treatment of reserves and accumulated profits, adjustments of capital on the basis of new profit sharing ratio. The first is sacrificing ratio. Why we need to calculate the sacrificing ratio? For example, there is a partnership and where existing partners are A, B, and C, and they are sharing profits in the ratio 1 is to 1 is to 1. Now here D is admitted as a new partner. Because of admission of D, now they have to share their profits. अब D जो है, जो नया पार्टनर ऐड हुआ, उसे अब नया शेयर चाहिए होगा यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल अगर D एडमिट हुआ फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब D को 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है. नाउ बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ D, A, B और C को जो प्रॉफिट्स ए बी सी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, अब ए बी सी को वो डी के साथ भी शेयर करना पड़ेगा. इट मीन्स ए बी सी को कुछ ना कुछ पार्ट सैक्रिफाइस करना होगा, जो सैक्रिफाइस करके वो किसको देंगे, डी को देंगे, जो डी हमारा एक न्यू पार्टनर है. सो दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. And the formula for calculating the sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. With the help of this formula, we calculate the sacrificing ratio. Consider this example. Saurabh and Gaurav are equal partners. They admit Chunmun as a partner in their firm, and now we have to find out the new ratio, sacrificing ratio, and the new ratio is given, that is 4 is to 3 is to 2.
We know the formula that sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. अब सौरभ किस रेशो में सैक्रिफाइस करेगा? Saurabh and Gaurav are equal partners. It means they are sharing in the ratio 1:1. It means Saurabh का रेशियो कितना रहेगा 1:2, गौरव का कितना रहेगा 1/2. न्यू रेशियो है 4:3:2. तो सौरभ का रेशियो यहाँ रहा 4/9. सो दैट्स वाई 1/2 दैट इज ओल्ड रेशियो में से हम न्यू रेशियो सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ सौरभ विल सेक्रीफाइस 1/18 ऑफ हिज शेयर टू द न्यू पार्टनर चुनमुन. इन द सेम वे गौरव का ओल्ड रेशियो है 1:2, न्यू रेशियो है गौरव का 3/9. सो जब हमने ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो सब्ट्रैक्ट की वी गॉट 3/18. सो नाउ गौरव जो है वो 3/18 ऑफ हिज शेयर सैक्रिफाइस करेगा चुनमुन के लिए. सो हियर द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1/18 and 3/18 and we can say 1:3. So in this way, we will compute the sacrificing ratio. Now here is the most important concept, that is goodwill. Goodwill is the value of reputation of a firm in respect of the profits expected in future over and above the normal rate of profits. Basically goodwill की अगर हम बात करें तो goodwill वो होता है जो एक normally रेपुटेशन कह सकते हैं कंपनी का, फर्म का रेपुटेशन, राइट. अब गुडविल जब भी नया पार्टनर आता है तो गुडविल पे उस चीज का इफेक्ट पड़ता है. आफ्टर द एडमिशन हमारे फ्यूचर प्रॉफिट्स क्या होने वाले हैं उन सभी के ऊपर गुडविल का इम्पैक्ट रहता है. एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को एज वी नो कि कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं न्यू पार्टनर्स के लिए. इसी तरह से न्यू पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आता है, गुडविल लेके आता है उस सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने की. नाउ देयर आर 3 सिचुएशंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. फर्स्टली व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब पार्टनर नया एडमिट हुआ और उसने प्राइवेटली गुडविल लेके आया. सेकेंड इज जब नया पार्टनर आता है वो गुडविल के प्रीमियम को या गुडविल को कैश में लेके आता है. थर्ड केस जब नया पार्टनर एडमिट होता है वो गुडविल को कैश में नहीं लेके आता. नाउ वी विल डिस्कस दीज 3 केसेस इन डिटेल. द फर्स्ट केस इज व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली. इसका मतलब है गुडविल जो है वो आउटसाइड द फर्म पे की गई है पार्टनर ने एज अ कंपनसेशन. एंड फॉर द प्राइवेट गुडविल कोई एंट्रीज बुक्स में पास नहीं होती बिकॉज ये जो गुडविल है वो प्राइवेटली है, प्राइवेट है, इसीलिए हम इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं. द सेकेंड केस जब पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में लेके आता है. नाउ द पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. अब वो जो कैश लेके आया उस अमाउंट को हम बिजनेस में रखते हैं और जितना अमाउंट वो लेके आता है गुडविल का वो हम पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स जो हमारे होते हैं उनको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करते हैं, जिसके लिए हम बेसिकली 2 एंट्रीज पास करते हैं अगर हमें इस गुडविल को बिजनेस में रिटेन करके रखना है. फर्स्ट इज कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. दिस एंट्री इज फॉर कि जब पार्टनर कैश या बैंक के थ्रू गुडविल लेके आया. डेबिट वर्ड कम्स इन के साथ हमने कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट किया. जब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बिकॉज बिजनेस में रिटेन करना है तो हम इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और ये डिस्ट्रीब्यूशन होता किस रेशो में है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में. जिस रेशो में पार्टनर्स ने अपना शेयर उस नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया उस रेशो में हम इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सेकेंड केस जब गुडविल पार्टनर लेके आया और ओल्ड पार्टनर्स ने उसको विड्रॉ करा लिया. सबसे पहले वही एंट्री होगी जब नया पार्टनर गुडविल लेके आया कैश या बैंक के साथ, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. जब हम इस गुडविल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, द एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
In the third case, old partners capital account debit to cash and bank because ये जो goodwill का amount था old partners ने withdraw करा ली. तो डेबिट द रिसीवर के साथ हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जितना प्रोपोर्शन उन सभी ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ किया टू कैश एंड बैंक क्रेडिट व्हाट गोस आउट के साथ हमने इसको क्रेडिट किया. देन थर्ड केस, जब गुडविल या प्रीमियम नया पार्टनर लेके आया, ठीक है, वो अपना जो नया पार्टनर लेके आया वो कैश में नहीं लाया गुडविल का पार्ट, तो उसमें एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 specifies that goodwill cannot be raised if the goodwill is self generated और goodwill और कोई भी कंसिडरेशन इसके रिगार्डिंग पे नहीं की गई है. राइट, सो इस केस में यहाँ पर गुडविल अकाउंट जो है वो हम नहीं क्रिएट करते. Now the new partner is not bringing any cash account for goodwill, तो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को हम यहाँ ओपन करते हैं और जितना पार्ट वो गुडविल का लाया उससे डेबिट करते हैं. इसी तरह से ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उस अमाउंट को क्रेडिट करते हैं. करंट अकाउंट यहाँ पे हम ओपन करते हैं. So entries will be new partner's current account debit to old partner's capital account and the ratio will be sacrificing ratio. इन केस अगर गुडविल हमारी बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो सबसे पहले हम उसको राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके. सो द एंट्री जो होती है वो है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. जब नया पार्टनर आया हमारी फर्म में तो हमारी कहीं ना कहीं एसेट्स और लायबिलिटीज पे उसका इफेक्ट पड़ता है. सो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पे कि हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को दोबारा से रीवैल्यूएशन करें ताकि हमें एक एग्जैक्ट और वी कैन से फेयर वैल्यूज मिल सके. ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ हो सकता है हमारी एसेट्स बढ़ गई हों, इट माइट हैव बीन पॉसिबल कि हमारे एसेट्स कम हो गए हों या लायबिलिटीज़ पे इफेक्ट पड़ा हो, लायबिलिटीज़ बढ़ गई हों या लायबिलिटीज़ कम हो गई हों. तो वहाँ पर हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन करते हैं जिसके लिए हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं. समटाइम्स हम इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं. रीवैल्यूएशन में बेसिकली जितना भी अगर इन केस हमारी एसेट्स बढ़ती हैं, एसेट्स अगर हमारी बढ़ रही हैं तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन एंड इन केस हमारी लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव टाइम बिकॉज इट इज अ गेन फॉर द बिजनेस. सो दैट्स वाई increase in assets and decrease in the liabilities is credited in the revaluation account. But in case हमारे assets की value in case कम हो जाती है या liabilities बढ़ जाती हैं तो वो हमारे लिए loss होगा. That's why इसे हम debit करते हैं. इन केस कोई ऐसा एसेट था जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया उसे हम क्रेडिट कर देंगे. इन केस ऐसी कोई लायबिलिटी है जिसे हमने रिकॉर्ड नहीं करा उसे हम डेबिट कर देते हैं. सो फाइनली हमारे अकाउंट में जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो हमें ये शो करता है कि हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है. तो जितना भी यहाँ पे रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हम पार्टनर्स में ओल्ड पार्ट कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के साथ ओल्ड रेशो में. प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें रीवैल्यूएशन से हुआ है. नाउ समटाइम्स हमारे पास रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड कई बार प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस होते हैं जिनका हमें ट्रीटमेंट करना होता है. पहले के कुछ ऐसे लॉसेस हैं या पिछले कोई ऐसे प्रॉफिट्स हैं कि एडमिशन के टाइम पे कई बार जर्नल रिजर्व होता है, रिजर्व फंड, P&L का कोई बैलेंस है बैलेंस शीट में जिसे हमें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है. जब हम इन सब प्रॉफिट्स को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं वी नीड टू टेक केयर दैट हम इसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करें. नए पार्टनर को इन सब में से कुछ भी चीज़ या कुछ भी पार्ट नहीं मिलता.
सो इसके लिए एंट्रीज हम पास ऑन करते हैं. इन केस रिजर्व्स और प्रॉफिट्स होते हैं, देन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट. इन केस कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व है, तो उस सब को हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ओल्ड रेशो में. अगर लॉसेस होते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है with the amount of that P&L account or our deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure is a advertisement suspense account and that will be in old ratio. Now here is the concept of hidden goodwill. Sometime it happens that हमें गुडविल की वैल्यू एडमिशन के टाइम पे गिवन नहीं होती. एंड क्योंकि वो वैल्यू गिवन नहीं होती, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती. गुडविल एग्जिस्ट करती है, बट उस केस में हम उसे कहते हैं हिडन गुडविल. इस केस में हम गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. राइट. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि टोटल कैपिटल कितनी है न्यू फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनरशिप. न्यू पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे हम फर्म की, जो हमारी न्यू फर्म बनी है, उसकी हम टोटल कैपिटल फाइंड आउट करते हैं. अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारी ओल्ड पार्टनर्स की कितनी कैपिटल थी. जब हम न्यू कैपिटल में से ओल्ड वाली चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमें डिफरेंस की वैल्यू मिलती है, दैट इज अवर हिडन गुडविल. फॉर एग्जाम्पल, अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन फर्म. उन्होंने चेतन को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ फर्म. नाउ न्यू पार्टनर्स इज चेतन एंड उसका शेयर है 1/4. चेतन जो है 2 लाख रुपीज लाया कैपिटल के. अब टोटल एसेट्स हो गए फर्म के 5,40,000. फर्म की लाइबिलिटीज गिवन है हमें 1 लाख उस डेट को. नाउ वी हैव टू पास ऑन द एंट्री फॉर गुडविल. अगर देखा जाए तो हमें दिख ही नहीं रहा यहाँ पे कि हिडन गुडविल है, तो हमें हम हिडन गुडविल निकालनी है. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम टोटल कैपिटल निकालेंगे न्यू फर्म की. अब चेतन 2 लाख रुपीज लेके आया फॉर 1/4 शेयर. राइट. तो 2 लाख रुपीज जो थे वो 1/4 शेयर के थे. दैट इज 2 लाख फॉर 1/4 शेयर. अगर मुझे यहाँ पर 1 की वैल्यू कंप्यूट करनी है विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड, वी विल फाइंड आउट 2 into 4 upon 1. दैट विल बी इक्वल्स टू 8 लाख. ये जो 1 है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है टोटल कैपिटल को. राइट. सो इससे हमें ये पता चला कि हमारी फर्म की टोटल कैपिटल, न्यू कैपिटल विल बी 8 लाख. राइट. अब हम देखेंगे कि हमारी नेटवर्थ कितनी है, जो हम ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं. तो देखो, हमें गिवन था कि यहाँ पर एसेट्स थे 5,40,000, लाइबिलिटीज थी 1 लाख. सो जब हमें नेटवर्थ निकालनी होती है तो हम बेसिकली एसेट्स में से लाइबिलिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो नेटवर्थ हमें यहाँ से पता चली 4,40,000. कैपिटल कितनी थी चेतन की? 6,40,000. सो नाउ अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की कि न्यू फर्म की कैपिटल होनी चाहिए थी 8 लाख. वो है कितनी अभी ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे? 6,40,000. ये जो डिफरेंस आया यहाँ पर 8 लाख और 6,40,000 का, दैट इज 1,60,000. दिस इज अवर गुडविल. क्योंकि नए पार्टनर के अकॉर्डिंग तो हमारी 8 लाख थी और हमारी नेटवर्थ के बेसिस पे हमारी कैपिटल आई 6,40,000. So this is hidden. That is 1,60,000 is hidden. This is our hidden goodwill. Right? So new partner का जो goodwill का शेयर रहा 1,60,000 में, वो रहा 40,000 का. तो चेतन जब आया तो वो 40,000 की hidden goodwill लेके आया. So entries हमारी इस तरह से होंगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट बिकॉज ही ब्रिंग 2 लाख ऑफ हिज कैपिटल. जितना वो पार्ट लाया वो हम अभय और बीना में गुडविल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिकॉज जो नया पार्टनर है वो 40,000 का गुडविल लेके आया. ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिकॉज दे आर इक्वल पार्टनर्स. सो दैट्स व्हाई 40,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन
between Abhay and Beena, 20,000 and 20,000. Now sometimes the new partner brings in proportionate capital, कि कई बार वो proportionate capital लेके आता है जहाँ पर new partner की capital हमें given नहीं होती, तो वो proportionate लेके आता है. इस केस में हम total capital के basis पे capital compute करते हैं new partner की. Adjustment of old partners capital account on the basis of new partners capital account, कि जब capital of old partners को हम adjust करते हैं नए partner के basis पे, तो हम जितनी भी हमारी capital होती है firm की वो new ratio के basis पे compute करते हैं. फिर हम हर partner का share find out करते हैं और उसके difference को find out करते हैं, right? So इस तरह से हम उसके differences के लिए journal entries pass करते हैं. जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? एग्जिस्टिंग कैपिटल जो होगी वो अगर ज़्यादा होती है न्यूली कैलकुलेटेड कैपिटल से, कि एग्जिस्टिंग वाली हमारी ज़्यादा है और न्यूली वाली हमारी कम है, राइट? तो इस केस में क्योंकि न्यूली के अकॉर्डिंग हमें इस एग्जिस्टिंग को न्यूली के बैलेंस पे लाना होता है, दैट्स वाई हम उसको पे ऑफ कर देते हैं. दैट्स वाई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और पार्टनर्स करेंट अकाउंट. इन केस एग्जिस्टिंग कैपिटल हमें लगती है कि वो कम है और न्यूली कैलकुलेटेड कैपिटल ज़्यादा है, तो उस केस में हमें मैच आउट करने के लिए मंगवानी पड़ती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग वाली हमारी कम है. इस एग्जिस्टिंग को हमें बैलेंस करना होता है न्यूली के साथ, तो इसलिए इसको भी ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि न्यू ज़्यादा है, तो हम इन पार्टनर से वो चीज़ वापस मंगवाते हैं. तो दैट्स वाई एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट or partners current account debit to old partners capital account. Thank you.